بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں آج 26ویں ترمیم کے تحت ججوں کی تعداد 25 کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہو رہا ہے، جس میں 3-4 اور بھی ترمیم پیش کی جائیں گی اور ان کو منظور کیا جائے گا، کیونکہ حکومت نے اپنے تمام ممبران قومی اسمبلی کو پابند کیا ہے کہ وہ 4 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں تاکہ ہم یہ ترمیم بڑے آسان طریقے سے پاس کر سکیں۔ لیکن سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، ان کو کوئی میسیج نہیں کنوے کیا گیا، اور مسلم لیگ ضیاء کے جو چیئرمین ہیں اعجاز الحق صاحب، وہ بھی لندن میں ہیں، وہ بھی ان کے رابطے میں نہیں ہے۔ لیکن باقی تمام کو کہا گیا کہ آپ 4 بجے تک قومی اسمبلی ہال پہنچ جائیں، ارجنٹ۔ تو اب جو پاکستان کی پی آئی ہے اس کو بیچنے کا جو کام تھا وہ کل جو منسٹر علیم خان صاحب انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی جتنے پیسے ہمیں بتائے گئے ہم ان میں نہیں دیتے۔ تو دوسری طرف کیونکہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی ہم خرید رہے ہیں، مریم نے مجھے مشورہ دے دیا ہے، ہم لے رہے ہیں، اس کو نہیں بنا رہے ہیں، تو وہ کیوں بیچیں گے بھائی؟ کیونکہ جب اپنے ہی گھر میں خریدار ہوں اور وہ 10 ارب سے بھی کم میں خرید لیں تو ان کو دے دی جائے، تو 12 تو ہو گئے نا ان کے جنہوں نے یہ ایئر لائنس خریدنی ہے۔ تو پاکستان میں کیونکہ عدم نرالہ ہے، یہاں پر جتنے مرضی جرائم کرائم کے مالک ہوں، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں تو وہ بس ان کی باغ و بہار ہے، وہ جو کریں کرشمہ ساز کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا پی آئی ایئر لائنز خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کون پوچھتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بھائی یہ کیا پدی کا شوربہ۔ آپ تو ان کی سپوکس مین ہیں، آپ ان کی باندھی ہیں، آپ ان کی جو بات وہ کہیں ان کو آگے کرتی ہیں۔ اب انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہوگا، کہہ دیں ہم نے نہیں خریدے، تو یہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے ہمیشہ فائدے کا سودا کیا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے۔ اگر یہ خود اسٹیل مل چلاتے ہیں تو وہ نفع میں جاتی ہے، گورنمنٹ کی اسٹیل مل نقصان میں جاتی ہے۔ اگر شاید خاقان عباسی اپنی ایئر لائنز بناتے ہیں وہ نفع میں جاتی ہے، لیکن جب وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں تو یہ نفع کی بھی نقصان میں جاتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس پر پاکستان کے لوگ پریشان بھی ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 8 فروری کو انہیں ریجیکٹ کیا، انہیں حکومت دے دی گئی۔ 26ویں ترمیم کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران کا جوڑ توڑ کیا، بھن توڑ کی، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ اور اب یہ 26 ترمیم کی جو شقیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ 25 ججز جو عدالت عالیہ میں لیے جا رہے ہیں، امریکہ میں 13 ہیں، یو کے میں 19 ہیں، انڈیا میں 33 ہیں۔ اسی طرح مختلف وہ ممالک جو کہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں وہاں پر بہت کم ججوں کی تعداد ہے، لیکن اب 25 ہو گئے، کیونکہ پہلے جو استانہ جج ہیں نا ان میں سے ان کے گروپ کے کم ہیں۔ اس گروپ کو بڑھانے کے لیے یہ ساری سازش کی جا رہی ہے، اور موجودہ حکمرانوں کا ہر کام ہر چال وہ ہوتی ہے جو سازشی ہوتی ہے، اور اس میں کسی نے کہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اور دوسرے نمبر پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بار بار کال دیتے ہیں آ جاؤ، اب سوابی میں 9 مئی کو کال دے دیا۔ بھائی جب آپ پہلے جلسے میں جلوسوں میں دھرنوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو 9 مئی کو کیا ہوگا؟ برابر دیکھتے ہیں، کیونکہ علیم گنڈا پور نے کہا کہ یہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا، سب سے بڑا یہ جلسہ ہوگا،
اور چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی یہی کہا ہے. جبکہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی جو کہ جیل میں تھی وہ باہر آ چکی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے یہ ان کو مختلف جو چیزیں ہیں نہ خوراک دیتے ہیں نہ میڈیسن دیتے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے مختلف اور چیزیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ جو ایک ان کے وکیل تھے چیوتا صاحب وہ یکدم نکل آئے ہیں اور ان کو کہا یہ کیا ہے کہ یہ اغوا ہوئے تھے 2 کروڑ توان مانگا جائے. یہ الٹی کہانی ہے جس کی کوئی نہ سر ہے نہ منہ ہے نہ پیر ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو کنڈیم کر دیا. انہوں نے کہا ایسا پاسبل نہیں ہے. اور چوتھا ہمارا موضوع ہوگا امریکہ میں ہونے والے انتخابات. اس میں جو ٹرمپ ہے اس کی ہر صوبے میں جے ہو رہی ہے اور کملا ہیرس جو ہیں وہ بھی کم نہیں ہے لیکن 49 اور 51 کا مقابلہ ہے. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج آپ دعوت دی ہے محترمہ زیبا ناز صاحب کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اور ٹکٹ ہولڈر ہیں قومی اسمبلی لاہور سے. تو میں محترمہ زیبا ناز صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. میرے مہمان ہیں ملتان سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جناب مغیث احمد قریشی صاحب. مغیث احمد قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام احسان صاحب بہت شکریہ. اچھا زیبا ناز صاحب آپ یہ بتائیں اس وقت یہ جو 9 نومبر کو جلسہ آپ سوابی میں کر رہے ہیں. جی سوابی تو وہ صوبہ ہے جس میں آپ کی حکمرانی ہے. یہ اس کو لاہور میں کریں اس کو اپنے کراچی میں کریں اس کو پشاور کوئٹہ میں کریں یا اور جو ملتان میں کریں تو اب اپنی وہ تو آپ کے سارے معاملات وہاں تو جلسہ آپ کا ہو ہی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احسان صاحب آپ نے مجھے مدعو کیا. میں آپ کے ٹی وی چینل اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ آپ سوابی میں نہ کریں آپ لاہور میں کریں ملتان میں کریں یا پاکستان کے کسی اور کوئٹہ کر لیں. دیکھیں وہ بھی پاکستان کا ایک شہر ہے پاکستان کا ایک صوبہ ہے. ہم نے سوابی میں اس لیے کیا کیونکہ پنجاب کی حکومت جو ہے اس کو پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا. رستے بند کر دیتے ہیں کنٹینر لگا دیتے ہیں شٹر ڈاؤن کیا کہہ دیتے ہیں اور پھر عوام بہت پریشان ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ بہتر سمجھا کہ ہم سوابی میں ہی جلسے کا اہتمام کیا جائے کیونکہ اس میں پنجاب اور دوسرے جو شہر والے ہیں ان کو پیٹ کے میں مروڑ جو اٹھتے ہیں کم سے کم وہ کم ہو جائیں گے. دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو. صحیح. عمران خان صاحب کے لیے لوگ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے نکلتے ہیں. جتنے بھی پہلے جلسے جلوس ہوئے اس میں بہت ساری رکاوٹیں بہت ساری پریشانیاں بہت ساری عوام کو دھکا مشتی کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس کے باوجود عوام ڈٹ کے لبیک کہتی ہوئی عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی رہی. آج بھی انشاءاللہ تعالی جو عمران خان کا سپاہی ہے اس کو ان رکاوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جیالے ہیں وہ دل سے جان سے نکلتے ہیں. ان کے لیے یہ گاڑیاں گولیاں اور یہ رستے بند کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا. وہ پھلانگ کے بھی چلے جاتے ہیں وہ نیچے سے بھی گزر جاتے ہیں. جو گاڑیوں والے ہیں وہ تو ہم تو خود 400 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کچھ پیچھے کی طرف نہیں دھکیلتی. یہ ہمارا حوصلہ اور بلند کرتی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں اور مضبوط کرتی ہیں. تو اس لیے یہ جلسہ سوابی کا جو ہے یہ پوری جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں سب سے کامیاب جلسہ ہوگا. اچھا مغیث قریشی صاحب آپ یہ بتائیں یہ ابھی جو میڈم نے کہا ہے ابھی ملتان میں جلسہ ہوا تو کتنے لوگ آئے آپ کے پاس؟ اور اس میں نے تو دیکھ رہا تھا آپ کھڑے تھے اور وہ ایک جو اپنے
गद्दी नशीन है, उनका बेटा खड़ा था, बाकी तो लोग नजर नहीं आ रहे थे। तो अब फिर जो आप ये जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, पंजाब की हुकूमत वो आपको वहाँ स्वाबी जाने नहीं देगी, तो इस बारे में बताएं आपके क्या नया अमल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, आपका, आपके टीवी चैनल का और मीडिया टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। पहली बात तो यह है एहसान साहब, मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और ये पहली बार नहीं हुआ। हमें थ्रेड्स भी थे, थ्रेड्स के बावजूद, रुकावटों के बावजूद कारकुन बाहर निकले, हमारी बहनें बाहर निकली, हमारे भाई बाहर निकले, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बाहर निकले हैं। और यहाँ मुल्तान से तारिक जमान गुज्जर साहब, नदीम कुरैशी साहब और जैन कुरैशी साहब और आमिर डोगर साहब के भाई और जहर बहार हाशमी साहब, ये पूरी टीम जो मुल्तान की जो करीम है, ये सारे बाहर निकले हैं और हमने बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। हमारे ऊपर डंडे चलाए गए, हमारे ऊपर रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन उसके बावजूद हम निकले हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हर बार जब भी आला क़यादत की कॉल आई कि प्रोटेस्ट की जब भी कॉल आई, मेरा जिला मुजफ्फरगढ़ हो, मेरा शहर मुल्तान हो, हमने पूरे साउथ पंजाब के कारकुन, हमारा फख्र है और इमरान खान के बहादुर सिपाही हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब के सिपाही हैं, वो निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी, और जो सवाबी की जहां तक बात है, जलसा देखेंगी, जमहूरी इंसान का हक है कि आप एहतजाज करें। अच्छा, सवाबी भी, जैसे हमारी जेबा बहन ने कहा कि सवाबी भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान का शहर है, तो इंशाल्लाह सवाबी के बाद भी बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। अगला अमल भी हम पंजाब में भी आ रहे हैं बहुत जल्द, और पंजाब में ये आखिरी जलसा होगा अब इंशाल्लाह हमारा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अब ये जो मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जब कोई किसी जगह जलसा होता है या जुलूस होता है, तो जितने पंजाब में आम लोग होते हैं उनके सर घरों को पुलिस के जरिए घेरे में ले लिया जाता है। तो अगर यही तरीकाकार जारी रहा स्वाबी के जलसे के लिए भी, तो वहाँ लोगों की तादाद पंजाब से कम होगी। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, में भी रॉन्ग और राइट। इसके लिए आपका क्या नया अमल है? अच्छा एहसान साहब, हमारी रिवायात पहले भी ऑन द रिकॉर्ड है, हम हर जलाओ घिराओ, हमारी हर रुकावट के बावजूद, थ्रेड्स के बावजूद, हमारे बंदे, हमारे कारकुन उठाए गए, हम पर नाजायज झूठे FIR कराई गई, उसके बावजूद हम इमरान खान की मोहब्बत में इजाफा हुआ है। ये लोगों के दिलों में इमरान खान बैठ गया है। और दूसरी बात ये है कि ये मरियम नवाज साहबा और ये इनकी गवर्नमेंट नाकाम हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। रियासत नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है, ये हर तरह से नाकाम हो चुके हैं और इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके, जैसे आपने कहा क्या फिद्दी का शोरवा, ये खत्म हो गई हैं कहानियां इनकी। और ये देखेंगे, ये बारी बारी करके सारे ये भाग जाएंगे अपने अबाई घर, ये चले जाएंगे सारे। आप भी देख रहे हैं, आपके सामने है। मुगीज कुरैशी साहब, मुझे आप ये बताएं कि अभी पाकिस्तान की जो एयरलाइंस नंबर 1, जो कभी नूर खां के दौर में अक़वाम आलम की नंबर 1 एयरलाइंस थी, अब वो अरबों खरबों रुपए के घाटे में जा रही है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि PAE को डुबोने में हम लोग सब शामिल हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम ये खरीद कर इसको नंबर 1 एयरलाइन बना रहे हैं। मुझे मरीम नवाज ने ये कह दिया है, लेकिन जो निजकारी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कल ये ऐलान किया है कि हमें 10 अरब रुपया बिड मिली थी इसके लिए, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये आपस में ये खेल रहे हैं, ये सारा खेल आपस में खेल रहे हैं और ये बंदर बांट हो रही है। तो आप ये बताएं, PAE को खरीदना, जैसे ही गंडापुर ने कहा कि हम खरीद लेते हैं, तो उसके बाद ये शोशे छोड़ने शुरू कर दी गए हैं। इसके पीछे पूछता आप ये समझते हैं क्या है? जी एहसान साहब, सबसे पहले तो ये हमारा अलमिया रहा है कि हमारा अपना बिजनेस, जाती जो बिजनेस है, हमारा जो जाती कारोबार है, वो हमेशा ऊपर गया है। और जो कौमी बिजनेस है हमारा, जिससे
इस कौम को फायदा होना था वो हमेशा नीचे आया है, और ये बहुत बड़ा आलमी है। आप ये देखें शाहिद खान अब्बासी साहब की जो एयरलाइन है वो पाकिस्तान की बेस्ट एयरलाइन में चली गई, और दुनिया की जो बेस्ट एयरलाइन थी PIA वो बदकिस्मती से वो नीचे चली गई, वो डाउन हो गई। क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब इसके चेयरमैन रहे हैं ना, तो वही है बात है ना एहसान साहब, वो जो जब चेयरमैन थे अब वो बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बातों से कहीं कहीं इत्तेफाक भी करता हूं, लेकिन जब वो चेयरमैन थे उस वक्त उनको नजर नहीं आया उनकी एयरलाइन जो है वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन में शुमार हो गई, और जो हमारी दुनिया की बेस्ट एयरलाइन थी, और ये अरबों की बात नहीं है, ये खरबों रुपए की ये हमारा जो असासा है ये खरबों में है, ये अरबों में औनों फोनों में। इनका क्या करना है, इनकी रिवायात है, ये इनके अपने बंदे बिठाए होते हैं बाहर गिने के लिए, भाई वो उन्होंने इतना कम लगाया हम इतने लगा देते हैं, ये बंदर बांट है और कुछ नहीं है, इस मुल्क में हमेशा से होता रहा है, और यही दो खानदान करते रहे हैं इस मुल्क के साथ। अच्छा मोहित साहब, हम ज़ेबानाज़ साहब से यही सवाल करते हैं, क्या आप ये होने पे जो बिकने देंगे आप? एहसान साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है हुक्मरानों ने। ये दो पार्टियां थी, पहले तो ये सियासत में लूटती रही एक दूसरे को, और फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर पाकिस्तान के देखे एयरपोर्ट इन्होंने गिरवी रख दिए और बेच दिए, और किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड की है, बेचे नहीं है। बात इनकी समझ में आती नहीं है, काम ये बड़े बड़े कर जाते हैं। फिर मोटरवे जो है इन्होंने वो भी कर दी, इन्होंने अब जहाजों की बात रह गई, PIA की बात रह गई। PIA को भी ये किसी ना किसी औने पौने में बेचना इसलिए चाह रहे हैं कि ये सस्ता बिकेगा तो हम परचेज करके ऑनर बन जाएंगे। पाकिस्तान का किसी ने ना मईशत का ख्याल किया, ना पाकिस्तान के रोजगार का ख्याल किया, ना पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देने का ख्याल किया। ये सिर्फ आते हैं अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आते हैं, नवाज शरीफ और ये कुछ भी नहीं करने आते। नवाज शरीफ कह रहे हैं हमने खरीदनी है, मरियम ने उनको मशवरा दे दिया, लेकिन मरियम औरंगजेब कह रही है कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं। वही बात आ गई ना, जब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये हम ले लेते हैं, हमें दे दें, तो फिर वो अली बाबा चाली चोरों की टीम में से एक टीम का जो मोरा है वो बोलना शुरू हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो 4 प्याले रखे हुए हैं ना, उसका उठा के उधर रख देते हैं, उधर उसका उठा के उधर रख देते हैं। वो फिर टीवी चैनलों पे आके, जाहिर उन्होंने मीडिया हैंग किया हुआ है, मीडिया के ऊपर बात करना ममनू है, मीडिया को बोलने की इजाजत नहीं है, इन चीजों से डरने वाले नहीं है। हमने तो आवाज उठानी होती है क्योंकि हम पाकिस्तानी आवाम हैं, और आवाम की आवाज कोई बंद कर सकता। ये जो इन्होंने ये मुख्तलिफ ढोंग रचा रखे हैं, कभी ये तरमीमें लाने के चक्कर में बैठे रहते। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार वकार असलम साहब ने। वकार असलम साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया साहब। वकार असलम साहब, ये आप देखें, ये इस वक्त जो पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद आज जजों की जो 25 जज बनाने हैं वो भी आज पास हो जाएगी, कुछ और तरमीम भी आ रही हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं आप इसको किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका, यूरोप और मुख्तलिफ ममालिक में कहीं तो जजों की तादाद 13 है, कहाँ 18 है, कहाँ 17 है, और इंडिया क्योंकि इतनी बड़ी वहाँ पे आबादी है, वहाँ पर 33 जज हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी 25 जज जो है, ये कुछ काम ज्यादा नहीं हो गया? जो हंगामश्ती शुरू हुई है 26वीं आईनी तरमीम से लेकर अब तक, अब ये जो 27वीं तरमीम होने जा रही है, तो अदलिया में तो पाकिस्तान वैसे ही 126वें नंबर पर है। मतलब आलमी रिकॉर्ड अगर आप उसका जायजा लें तो मतलब अदलिया की कारकर्दगी तो बड़ी मायूस कुन रही है। मतलब बहुत से केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, और ज़ेरे इल्तवा ना सिर्फ हैं बल्कि उन पर जो समातें होती भी हैं वो भी इतनी बेमानी किस्म की होती हैं कि कोई मतलब जो साइल है उसकी सुनवाई नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ
कि जो हुकूमत इस वक्त तरमीम पर तरमीम कर रही है, मेरा ख्याल है कि तरमीम से ज्यादा भी हमारे कुछ सस्टेनेबल गोल्स भी थे, कुछ हमने अचीव भी करना था, कुछ और भी चीजें थी। लेजिस्लेशन पर आप एकदम इतना जोर दे देते हैं, वैसे आप पूरे 5 साल के टेन्योर में कोई 5 से 6 दफा पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, और जब तरमीम करने की जरूरत पड़ती है तो फिर आप यकमुश्त, मतलब जिस तरह PDM पार्ट 1 में 53 कवानीन यकमुश्त 1 महीने के अंदर वो पास हुए थे, जो मतलब पूरा सेशन जो था 2.5 साल का, उसमें पार्लियामेंटेरियंस मौजूद नहीं थे, उनका क्वोरम पूरा नहीं होता था। लेकिन जब अपने मफादात की पड़ती है तो फिर तरमीम भी हो जाती हैं, फिर ऐसे होने फैसले भी हुकूमतें करने पर मजबूर हो जाती हैं जो कि मुल्क की मफाद में नहीं होते, और मुल्क का जो वकार है और मुल्क की जो इज्जत और तकरीम है उसकी मतलब पूरी दुनिया उसका तज़ीक करती है, मजाक उड़ाती है कि मतलब किस तरह से एक मुल्क है जहाँ पर मतलब आपस में सियासी रहनुमाओं का ही इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। वकार साहब, मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके तवज्जो से हम ये स्पेशल टीवी के जो देखने वाले हैं और हमारा जो प्रोग्राम है सियासत बखार, उसमें ये आप बताएं, ये जितनी भी तरमीम है ये जाती मफाद को सामने रख के की जा रही है या कौमी मफाद को रख के की जा रही है? जी, जाती मफाद को रख के की जा रही है। मतलब बिलावल साहब चाहते हैं कि मतलब वो अपनी लाइजॉनिंग दिखाएं, वो दिखाएं कि वो बड़े पक्के मतलब सियासत के पावे हैं और वो किस तरह से घुमा सकते हैं, मंजरनामा बदल सकते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट एक टिल्ट की तरफ जा रही है। शहबाज साहब शायद गवर्नमेंट छोड़ना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स देख लें आप, तो नवाज शरीफ पहले ही नहीं लेना चाहते थे ये गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल से एक नया लाडला तैयार किया जा रहा है, उसका नाम बिलावल भुट्टो है, और उस बिलावल भुट्टो के लिए ये सारी तरमीम और ये सारी गुंजाइश पैदा की जा रही है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करता रहे। अच्छा, यहाँ स्टूडियो में मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब तशरीफ फरमाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। हम इनसे ये पूछते हैं, ये सारा मंजरनामा जो 26 तरमीम का है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? या ये इमरान खान को कैंडल करने के लिए, उसको और किसी पार्टी को खत्म करने के लिए सारा? एहसान साहब, ये तो इनके मंसूबे जो बना के ये तरमीमें पास कर रहे हैं, हालांकि जब ये इलेक्शन की मुहिम चला रहे थे, हालांकि मुहिम तो इन्होंने चलाई नहीं थी, थोड़ी सी जो चली 1 महीना, उसमें इन्होंने ये आवाम को रिलीफ देना था, आवाम को सुकून देना था, महंगाई कम करनी थी, रोजगार देना था, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, वो सारे चले गए बहार में, दुनिया जाए बहार में। इनके सिर्फ मकसद पूरे हो जाएं कि इनके केसेस कोई जज, कोई अदलिया में आवाज उठाने वाला बंदा ना हो, कोई इनके खिलाफ केस को खोल ना सके, इसलिए इन्होंने तरमीमें पास करनी शुरू कर दी आते सार। हालांकि ये मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। आप जिस नारे पे आए थे कम से कम वो तो आवाम को रिलीफ देते, महंगाई से छुटकारा दिलाते। आपने आते सार वो काम किए जो किसी ने भी नहीं किए। 40-45 साल की जो हुकूमत चल रही थी इनकी, 5 साल तेरे और 5 साल मेरे, उसमें ये सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ था। जो इनको पता चला कि ये तो करने वाले काम थे, ये तो बुद्धू थे जो पहले आए हुए थे, इन्होंने किए नहीं है, क्योंकि हमारी सजाएं माफ होनी थी, इनके केसेस माफ होने थे, इनकी सजाएं पेंडिंग थी, जिसकी बुनियाद पे ये प्लेटनेस कम करवा के ये चले गए। उन्होंने अपनी सजाएं हर चीज खत्म करवा ली ना। और ये जो अब जज 25 जज लगा रहे हैं, वो भी उसमें भी आवाम को रिलीफ देना नहीं है। अच्छा। अपने मफादात है। यहाँ पे तो निजाम ही निराला है पाकिस्तान का, क्योंकि जो केसेस चलते हैं वो दादा केस करता है और पोते जाके आगे सुनते हैं, और फिर रिजल्ट का पता चलता है कि रिजल्ट गलत था या सही था। आप देखो ना, जुल्फकार भुट्टो को सजा देखे ना, सजाए फांसी दे दी गई ना, और अभी आया जी वो गलत थी।
तो फिर वो जज साहब कैसे जिंदा रहे? आपने क्यों नहीं पकड़ा उनको जिन्होंने फैसले गलत दिए? आपने उल्टा तरमीमें लाने का सोचना शुरू कर दिया। आपने पाकिस्तान को उस हद पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे ना कोई अदलिया की बात कर सकता है, ना कोई इंसाफ की बात कर सकता है, और जो आवाज उठाएगा उसको पाबंदल सलासा कर देंगे आप, उनको जेलों में बंद कर देंगे आप, उनके ऊपर आप कहेंगे ये अगवा हो गया है, पकड़ के आप ले जाते हैं तो कह देते हैं ये अगवा हो गया है। अभी देखे ना, अभी जो हमारे वकला थे मचौदा साहब, उनको 15-20 दिन से इन्होंने वो सजा दी, वो उनके ऊपर जुल्म किया, और फिर उनकी आंखों में पट्टी बांध के, मुंह पे पट्टी बांध के उनको घुमाते रहे गाड़ियों में। बुजुर्ग आदमी थे, उनकी हालत इतनी नाजायज हो गई कि हम देख के परेशान हो गए उनको, और उनके पांव भी बांधे हुए थे, हाथ भी बांधे हुए थे, और फिर गाड़ी में किसी ऐसी जगह पे जाके छोड़ दिया, और जाके फिर कोई जहां उनका कोई परेशानी हाल नहीं था। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, ये सियासत का रंग नहीं है, ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है। आपको सियासत करनी नहीं आती। आपने अगर सियासत करनी है तो अमन से रहे। जब आवाज उठ गई तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया कि कराची की फिजाओं से आप हमारे साथ हैं, और आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तजिया नगार भी हैं, और आपने हमेशा सहाफ़त की खिदमत की है, और कराची से ऐसे बड़े शहर को आप लेके चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये मुल्तमस हूँ, ये जो 26वीं तरमीम के बाद पूरे मुल्क में शोर है कि ये सब तरमीम जो है हुक्मरान अपने लिए कर रहे हैं, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? एहसान नासर तरमीम है, 26वीं तरमीम ये मुल्क की सियासत में जब से आया है, इसके बाद जब से ये असम्बलियाँ वजूद में आई हैं, और सबसे पहले ये मुत्तफ़िका आइन बना, 68 से पहले भी आइन बने, 56 में बने, एक 62 में बना है जो जिसकी उम्र बड़ी कम थी, लेकिन मुत्तफ़िका तमाम आला क़यादत ने उसमें दस्तखत किए थे। उसके बाद 1973 का आइन जो है वो उससे पहले भी 2 आइन बने, 56 में और 62 में भी बना है, लेकिन उनकी मुद्दत बड़ी कम थी, ठीक खत्म कर दिए गए थे। ये का आइन था जो पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िका आइन है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। इसके बाद जैसे जैसे इक़्तिदार में हुक्में आती रही, अपनी जरूरत के मुताबिक आइन में तरमीम करती रही, और तरमीमें होती रही। इस वक्त जो तरमीम, ये 26वीं तरमीम जिस अंदाज पाकिस्तान की मिसाल में पहली आइनी तरमीम की, जो इस शॉर्ट टाइम में, लम्हों में, 2-3 दिनों के अंदर इस तेजी दिखाई गई है कि इसको तरमीम लाने की, जिसमें बहुत सारे अवाम है, और ये तरमीम जो है ना चैलेंज भी हो चुकी है सिंध हाई की, वकालत की, वकला की तरफ से भी हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। ये ऐसे में अब ये कोशिश ये कर रहे हैं हुकूमतें, हाँ जो इक़्तिदार हुक्मरान है, कि अब उसकी में 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरमीमों से मसले हल नहीं होंगे। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं क्या ये अहसान साहब, 1 मिनट जरा मैं वही साहब आपको पता है इन्होंने तरमीमें वीकेंड पे लाई हैं। आपको पता है कि ना कोई चैलेंज कर सके, ना कोई हमारे खिलाफ कोई दरखास्त दे सके, इसलिए 3 दिन की छुट्टी और 3 दिन और रात एक करके इन्होंने तरमीमें पास करवाई, और वीकेंड पे छुट्टी करके पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी करके तरमीम पास करवाई गई। साहब, ये जल्दबाजी बहुत है। आप मुझे ये फरमाएं कि अभी हमारे साथ एक तजिया नगार है वकारम साहब, उन्होंने कहा है कि ये सारी तरमीम जो है ना, इसका बेनिफिशरी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ को आप हुकूमत छोड़ दें तो नेक्स्ट बिलावल भुट्टो आएंगे। आपकी इस बारे में कोई राय है या कोई आप बताएंगे? नहीं, ये इस बात से ठीक है, इनकी राय हो सकती है। देखिए, इसके बेनिफिशरी सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके बेनिफिशरी तमाम वो लोग हैं जिन्होंने आइन पे दस्तखत किए हैं, आइन तरमीम पे दस्तखत किए हैं, ये तमाम उसमें शरीक
तमाम के मफादात वाबस्ता है। इससे पहले भी आइन में तरमीम की, अपने केसेस खत्म करा के, केसेस खत्म करा के जो इनको सजाएं हुई थी उन्हें माफ कराया गया। ये पाकिस्तान इस वक्त अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान हम तमाशा बन के रह गए हैं आदमी दुनिया के ऊपर। पाकिस्तान किसी जगह ऐसे मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान जैसी, ये आईनी तरमीम के हवाले से या करप्शन के हवाले से। आज हमारे हुक्मरान जी सरमायाकारी के लिए जा रहे, जिस सरमाया दे वो एक सवाल, जब हमसे सरमायाकारी मांग रहे हैं लेकिन जो अपनी मुबारक कर रहे हैं, तो क्यों ना पहले अच्छी मिसाल कायम करें। जो आपकी सरमायाकारी बैरून मुल्क हुई है, जो पाकिस्तान की दौलत इकट्ठी की हुई है, उसको पाकिस्तान ला के वापस लाएं और फिर हम भी शेयर कर देंगे। ये उस तरह केजरीवाल साहब, मेरे कल के तमाम अखबारात में कॉलम छपा है, जो आप ये कह रहे हैं ना, मैंने वाज़े लिखा है कि शरीफान और जरदारी सब जो लूटी दौलत बाहर ले गए उसको वापस ले गए हैं, तब ये किसी को कह सकते हैं आप सरमायाकारी करें। ये मेरे कल कॉलम छपे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसी मिसाल है एहसान साहब कि मैं आपसे कहूँ सरमायाकारी करें या करो जी, हालात चेंज होंगे, आपका ये जवाब तो मेरे से बनेगा ना, सवाल बनेगा ना कि भाई जमाल साहब आप जमाया, आप पहले अपनी क्यों नहीं लेके आते? मैं लाके अपनी मिसाल कायम करूँ तो मैं आपसे कहूँ ना। अरे भैया मार साहब, मुझे ये कराएं कि अगर कराची में भी तरीके इंसाफ कोई जलसा जुलूस करती है तो यहाँ के हुक्मरान भी जो लाहौर वाले हैं वही सलूक करते हैं, तो ये क्या मुमासलत है? क्या ये पीटीआई को जिंदा नहीं रहने देना चाहते या उनको खत्म करना चाहते हैं? ऐसे एहसान साहब, ये तारीख पढ़ने आप, और जो इस किस्म की सोच रखते हैं, ये जुल्म जबर की सोच है। कभी भी तरीके, कभी भी आवाम की आवाज को ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। वक्ती तौर पे आप दबा सकते हैं, उनकी मजबूरियों से खेल सकते हैं, लेकिन आप जितना किसी दबाएंगे उतनी शिद्दत से उसका रिएक्शन होगा, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप दुनिया की तारीखें देखें, जहां भी तब्दीलियां आई हैं वहां आवाम की पे ज्यादा जुल्म जबर नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप अपनी अयाशियां करें, आवाम जहाँ भूखे मरे, आवाम खुदकशियां करें, आवाम के जहाँ टैक्सों से परेशान है, बिजली के बिलों से परेशान है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं महंगाई की वजह से, तो कौन सी गवर्नमेंट है? आवाम के लिए क्या फायदा ये दे रहे हैं आप? कराची की जो सूरत हाल मैंने बताई है ना पीटीआई के बारे में, उस पर जरा रोशनी डाल दे। कराची हो किसी जगह भी हो, ये बात आप कराची को ना रखें, आप एक ही पूरे पाकिस्तान को रखे। हर जगह जहाँ भी जुर्म जबर होगा वो सवाल ये कराची में भी अब जो ये हुआ था, आज वो बच्चे जो है ना ये दावे सुन के 40-40 साल के हो गए। आज जदीद दौर है, आज ज्यादा देर तक आप किसी को जो है ना दावों पे तसल्ली नहीं दे सकते, किसी भूखे को आप दावों से उसका पेट नहीं भर सकते। साहब मुझे आप ये बताएं, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरीम ने कहा कि हम पीए खरीद रहे हैं, और साथ गंडापुर ने कहा हाँ आप हमें दे दें, तो अब जो वजीर नजकारी है उन्होंने कल फैसला किया ही मैं 10 अरब की जो बेटे मैं उसको कबूल नहीं करता, तो आप इसको पीआईए को किस रंग में देख रहे हैं? देखें, ये जो आप फरमा रहे हैं ये पीआईए के 10 अरब इस पे जहाँ इन्होंने 20 अरब दे देते, फिर पंजाब वाले कहते जी हमें दे दे, हम दे दें। ओ भाई मेरे, ये अब पहले आपको इतना ही शौक है आपको एयरलाइन चलाने का, और बहुत सारी एयरलाइन चल रही है दुनिया भर में, प्राइवेट चल रही है, आप अपनी बनाए। ये मुल्क की मतलब यही एहसास है वो खरीदने के उसमें रहते हैं कि कम कीमत में लूट का माल समझ ले, पहले उसको तबाह करें। पहले उसको तबाही किसी ने की है? तबाही नहीं 40 साल में ही नहीं हुक्मरानों ने की है, क्या आपने मैंने की है तबाही? अब तबाही हो जाती है फिर कीमत डाल देते। अगर यही बात करेंगे तो भाई जिन लोगों में वो IMF हो या कोई भी हो, फिर वो कहेंगे जी ये तो हम मालिक तो हम हैं, ये चीजें हमें दे रहे हैं, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अरे भाई जवाल साहब मुझे ये बताएं, जो अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा है, पीटीआई वाले कहते हैं कि अगर ट्रंप जीत गया तो इमरान खान रहा हो जाएंगे, इसमें कुछ सदाकत है या कोई ये ऐसी शोशाबाजी है? नहीं, ये मीडिया खबरें हैं, ये सब अपनी अपनी इज़हार ख्याल है, आवाम को उलझाया जा रहा है।
देखिए उनकी अमेरिका की पॉलिसी, जब जीतेंगे कल परसों 5 तारीख को इलेक्शन है, 20-25 दिन लगेंगे भाई काउंटिंग होने में, जब रिजल्ट आएंगे फिर देखेंगे उनकी क्या पॉलिसी होती है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले पॉलिसी वही माई बाप है, ये वहीं से इशारे चलते हैं, ये वहीं से डीलें होती हैं, ये वहीं से रिजीम चेंज होता है, ये वहीं से तब्दीलियां आती हैं। जी ज़बरनाज साहब आप बताएं। एहसान साहब देखें, ये कुछ बातें तो रियलिटी के साथ मंजर आम पे आ भी रही हैं और कुछ शोशा बनाया जा रहा है आवाम को गुमराह करने के लिए कि आप देखें कि टीवी चैनल शुरू करें ना तो उसमें इमरान खान से शुरू होता है और इमरान खान से खबरनामा हो जाता है। खबरनामों में तजिया भी देख लें, कोई भी तजिया भी होता है तो उसमें भी इमरान खान से शुरू होता है। पीटीवी भी ऐसे ही चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो शोशाबाजी है ये छोड़नी चाहिए। हुक्मरानों ने एक 4 चमचे बैठाए होते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक उनको कोई काम नहीं होता, वो एक ही काम करते हैं कि पीटीआई इमरान खान गलत है, इसको सजा होनी चाहिए, हमने तरमीमें पास करवानी है। वो कोई ऐसी तरमीम आ जाए जिसमें इमरान खान को रिहा ना किया जाए। साहब लाइन पे दोबारा आ गए। वकार साहब मैंने पूछा ये ट्रंप की जो कामयाबी है कि यह इमरान खान की रिहाई के रिलेटेड है या को अमेरिका कभी मुदाखलत करेगा पाकिस्तान के इस मामले में कि इमरान खान को रिहा किया जाए? जी, अमेरिका कभी भी, मतलब आप देखें इमरान खान ने सबसे ज्यादा जो फैसिलिटेट किया अपने दौरे इक़्तिदार में तो अमेरिका को ही किया है और अमेरिका के सटाइज बेहतर किए हैं, सी पैक को खुले लाइन लगाया है। अमेरिका की एक हद तक वो जा सकता है अब इसकी सपोर्ट में इमरान खान की, लेकिन अभी वक्ती तौर पे जो डायनामिक्स बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर आ भी जाते हैं तो वो इमरान खान की किसी किस्म की कोई फेवर नहीं करेंगे और ना वो करना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने मुल्क को, अमेरिका को जंगों से निकालना चाहता है। वो चाहता है रिपब्लिकन्स का जो मिशन है उसको एस्टैब्लिश करे। तो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की मैं नहीं समझता कि अभी उसको फौरी बहुत जरूरत पड़ जाएगी कि वो खान साहब को बाहर लेकर आए और खान साहब से मैन्यूवर करवाए अपने मुताबिक चीजें। अच्छा वहीबार साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख है कि 80 से लेकर अब तक ये 2 पार्टियां आपस में म्यूजिकल चेयर पे जीतती रही, हारती रही हैं। ये इमरान खान के आने के बाद ये सारा इर्ताश हुआ है, इसको आप अहाता करें, क्या इमरान खान कभी दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? जनाब ये जो आपने 40 साल की, अब 40 साल से थोड़ा सा पहले जमातें आई हैं, ये किसी अमरेले के साए में आई हैं। अच्छा। और नजरिया जरूरत के लिए इन्हें लाया गया है। एक बात, अब ये आया इमरान, रियलिटी है, ये रियलिटी है, इससे चाहे हमें कोई कुछ भी कह दे, आपको कुछ कह दे, सच बात कह दे, कोई भी हम पर इल्जाम लगा दे, लेकिन इमरान खान, ये भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ये क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने पीपल पार्टी में आया तो सोई हुई कौम को जगाया। अच्छा, अब इमरान खान ने वो जो सोई हुई कौम तो उसको शऊर दिया है। ठीक, तो ये कि अब वक्त के तकाजे तब्दील, जिद्दत वाला दौर है, अब आप किसी को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते। जी जी। और ये दोनों जमातें ये फ्रेंडली रहे हैं और ये बात ले रही क्या मिसाक जमहूरियत हुआ, वो एक मशरूत हुआ आपके सामने है कि पार्टी बेचागी तो वो जिन्होंने मुफाद, इनसे ये पूछा जाए 40 साल की सियासत में देखें आप कि हर बंदे ने आवाम की मफादात के, आवाम के लिए जहाँ खिदमत के दावे किए, वोट हासिल किए, असम्बली में पहुंचे, लेकिन 40 साल में आवाम का खड़े हैं और ये अशरफा का खड़े में, ये का खड़े में, आप इससे कंपेयर करें कि फायदा किसको हुआ इसका? ठीक, इस तरह मुल्क का खड़ा हुआ है, मुल्क के असासे बेचने पे आप मजबूर हैं। जनाब इजमाल साहब, यहाँ टाइम हमारा हो गया ख़त्म। आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त थी, मैं भी सुनना चाह रहा था, मेरे देखने वाले भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन तंगी दामा, वक्त की कमी है और मुझे बार बार कहा जा रहा है वक्त ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ
اور میں اپنے دیکھنے والوں کو کہ میرے کویشچن اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.